This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، مخصوص کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن اور میں ہوں راجہ کوثر سعیدی، پروگرام رمضان ذیشان کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام کے دو حصے ہیں، اور پہلے حصے میں لائق عزت تکریم و عزت، پیکر شرافت و لیاقت، میر کاروان الفت، قاری القرآن حضرت قاری محمد عمر سعیدی دامت برکاتہم العالی، ایم اے عربی و اسلامیات، گولڈ میڈلسٹ، ہمارا فخر، ہمارا مان، ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے۔ میں انہیں خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور قاری صاحب انشاءاللہ تلاوت کلام پاک کی سعادت بھی حاصل کریں گے، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت بھی انہی کے نامہ اعمال میں درج ہوگی۔ اور ہمارے دوسرے مہمان محقق، ادیب، دانشور، علمی اور ادبی شخصیت جناب پروفیسر راؤ جاوید اقبال صاحب۔ راؤ صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع جہنم سے آزادی کا مہینہ۔ ہم پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں، اور میں جناب قاری محمد عمر سعیدی صاحب کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ولكن رسول الله، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ولكن رسول الله وخاتم النبيين، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ وكان الله بكل شيء عليما۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وسبحوه بكرة وأصيلا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، قاری صاحب سلامت رہیے، سلامت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وأعد لهم أجرا كريما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، قاری صاحب سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ اکبر۔ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سبحان اللہ هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ماشاء اللہ قاری صاحب ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور صحت و تندرستی کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ آپ نے سما باندھ دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ راؤ صاحب اپنے نعتیہ مجموعے سے تمہید کے لیے صرف 2 یا 3 اشعار، ایک نعت شریف کے کہ آیا ہے جب سے گنبد خضرا خیال میں، آیا ہے جب سے گنبد خضرا خیال میں، اور عین کمال ہے وہی لمحہ خیال میں، اور مجھ پر 1000 دفتر لطف و کرم کھلے، مجھ پر 1000 دفتر لطف و کرم کھلے، لکھا تھا صرف ایک عریضہ خیال میں، لکھا تھا صرف ایک عریضہ خیال میں، اور کوثر وہ ہوں گے وجد کے لمحات بے گماں، کوثر وہ ہوں گے وجد کے لمحات بے گماں، آئے گا جب بھی ان کا سراپا خیال میں۔
ناظرین، تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت جناب قاری محمد عمر سعیدی صاحب کے نامہ اعمال میں رقم ہوا چاہتی ہے۔ جناب قاری صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے فصحاب عرب کے بڑے بڑے فصحاب عرب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اور سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر تیری نظر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت تو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیان نہیں، ملکوت تو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیان نہیں، اور کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان
بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں، میں گدھا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نقش جہاں نہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو بادشاہ۔ رہے حیات میں انسان کی بہتری کے لیے، رہے حیات میں انسان کی بہتری کے لیے اور نبی کا ذکر ضروری ہے زندگی کے لیے، نبی کا ذکر ضروری ہے زندگی کے لیے۔ ناظرین، ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے اور وقفے کے بعد ممتاز عالم دین حضرت قاری محمد عمر سعیدی اور جناب پروفیسر راؤ جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور ہمارا آج کا موضوع ہے جہنم سے آزادی کا مہینہ۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے،
जायके की जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे ली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा वॉशरूम इवें जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार होवे क्यों ना सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी तुसा करे सो एक रेसी ओ भी 2 मिनट। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्तिया सफाई, फकर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे विज दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विजदा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। रमजान आ गया है, रमजान आ गया है, बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमजान आ गया है, रमजान आ गया
ویلکم بیک ناظرین. ہمارا آج کا موضوع جہنم سے آزادی کا مہینہ، اور میں پہلا سوال کرنے جا رہا ہوں حضرت قاری محمد عمر سعیدی صاحب سے. حضور فرمائیے گا کہ تیسرے عشرے کی ماہ سیام میں نوید کیوں دی گئی؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ناظرین و سامعین کرام، میرے برادر طریقت جناب کوثر سعیدی صاحب نے جو سوال کیا ہے کہ رمضان المبارک کے اس ماہ مقدس میں جہنم سے آزادی کی نوید کیوں کر دی گئی، سب سے پہلی بات یہ ہے، صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے شعبان المقدس کے آخری دنوں میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، بڑا طویل خطبہ. اس کے مندرجات پورے بتانا تو مقصد نہیں، میں اپنے مقصد کی بات کرتا ہوں. میرے آقا کریم نے فرمایا اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، ایسا مہینہ آنے والا ہے جس کا اول رحمت ہے اور اوسط مغفرت ہے اور آخر جہنم سے آزادی ہے. یقینی بات ہے انسان اس وقت تک کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ نہ ہو. جب رحمت متوجہ ہوتی ہے تو وہ بندہ اپنی جبین نیاز کو اس رب کائنات کی بارگاہ میں پھر سجدہ ریز کر دیتا ہے اور عبادات کے مزے لوٹتا ہے. پھر جب رحمت متوجہ ہو گئی تو اللہ رب العزت پھر اس پر یہ کرم فرماتا ہے کہ اس کو بخش دیتا ہے، اور جب وہ بخشا گیا پھر کرم بالائے کرم یہ ہے کہ پھر وہ جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے. اور سرکار کائنات نے یہ بھی خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ جہنم سے آزاد ہونا صرف ایک بندے کا نہیں بلکہ ایک ایک رات میں 60 ہزار بندہ اللہ رب العزت جہنم سے نکال کر انہیں جنت عطا فرما دیتا ہے. ایک لمحے میں بھی، ایک ایک رات میں بھی. اور یہ کام غروب آفتاب کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک رہتا ہے، اور وہ فرشتہ جو ہے وہ منادی دیتا رہتا ہے. اصل بات ایک اور ہے کہ انسان کا مقصد تخلیق وہ اللہ رب العزت کی عبادت ہے. اور آپ جانتے ہیں اگر سانے مجازی ہو یا حقیقی، سانے مجازی ہو تو اس کی کیفیت یہ ہے کہ اگر وہ کوئی چیز بنائے اور وہ اپنے مقصد تخلیق کو پورا نہ کرے تو پھر وہ سانے اسے کباڑ خانے میں پھینک دیتا ہے. مثال کے طور پر یہ کپ میرے سامنے رکھا ہے، اگر اس میں پانی ڈالے اور اس میں کوئی لیکیج ہو اور یہ اپنے مقصد کو ہمارے سامنے یہ پانی جو ہے وہ نہ رہے اور پینا باقی نہ رہے تو بہہ جائے، تو پھر یقینی بات ہے کہ یہ کپ اب اس قابل نہیں ہے کہ اس میں پانی ڈال کر یہ چائے ڈال کے پی جائے. یہ کرسی، یہ میرے سامنے میز رکھی ہے، اگر میز اتنی کمزور ہو کہ تھوڑی بہت کوئی چیز رکھی جائے اور وہ گر جائے، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ مثالیں ہیں بیکار جو بھی ہے اس کو کباڑ خانے. انسان کے لیے اللہ رب العزت نے جو کباڑ خانہ بنایا اسے جہنم کہتے ہیں. یہ نئی بات آج پہلی دفعہ سننے کو ملی. اللہ، بڑی خوبصورت باتیں دیکھیں نا کہ جو شے مقصد تخلیق کو پورا، وما خلقت الجن
वल इंसा इल्ला लियअबुदून ऐ लियअरिफून, ऐ इंसान तुमने तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मार्फत के लिए बनाया गया है। अब तुम्हारी कैफियत यह है कि तुम मार्फत हासिल करते नहीं हो, उसकी इबादत करते नहीं हो, तो फिर देख लो अगर तुम अपने मकसद तहलीक को भूल गए ना तो फिर कबाड़ खान में जाओगे, उसे जहन्नम कहते हैं। और जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपनी जबीन नियाज झुकाता है तो फिर उसे जो सर बुलंदी अता फरमाई जाती है वो फिर रश के मलाइक बन जाता है। यही वजह है कि ऐसे लोग फिर रश के मलाइक बन जाते हैं और फरिश्ते आके, ये कुरान की मैं इस्तिशाद के तौर पर वो आयत पेश करता हूं, फिर फरिश्ते नाजिल हो जाते हैं मेरे आका करीम हुजूर सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वो नाज़िल शुदा किताब कुरान, जो सुभान अल्लाह, ये तो पूरी कायनात में इसकी मिसाल ही नहीं है जी। फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, उधर से इज़्न हो जाता है कि मेरा बंदा मेरी बारगाह में बैठा है, जाओ वहां पर उनको क्या कहो, अम्रिन सलाम, जो भी हुक्म होता कर, सलामती हो तेरे लिए सलामती हो, तेरे लिए सलामती हो, हत्ता मतलाइल फज्र, यहां तक के तुलुए फज्र हो जाती है। वाह, ये कर्म बालाए कर्म है। लेकिन बात एक और है कि हम तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। बस अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये दुआ है, मौला जो तेरी बेपाया रहमत बरस रही है तो इस बेपाया रहमत से हमें हज़्ज़ वाफ़िर अता फरमा दे। तूने रहमत की, हम तेरी इबादत की तरफ मुतवज्जे हो गए, मौला तेरी रहमत के सहारे फिर हमें मग़फ़िरत नसीब हुई, ये तेरा करम है। अब जहन्नम की आज़ादी से नवीद यह भी तेरे महबूब के यूहा के लबू से सुनी है, मौला फिर वो भी हमें अता फरमा देना और इस माह मुक़द्दस के खुसूसी फयूज़ व बरक़ात हम सबको अता फरमा। गोया फ़ज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। राव साहब, आपने जनाब कारी मोहम्मद उमर सईदी साहब की गुफ्तगू सुनी और आप यकीन करें कि आज माशाल्लाह मैं 63 साल का हो गया, ये जुमला मुझे पहली दफ़ा सुनने को मिला जो जहन्नुम के बारे में कारी साहब के मुँह से निकला। इससे पहले यकीन करें कि इतने सारे उलमा के खिताबात सुने, शायद आपने भी नहीं सुना होगा। ये अंदाज जो है सलामत रहिए। राव साहब, वो कौन से अमाल हैं जिनके करने से हम अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमतें समेट सकते हैं और क्या हुकूकुल इबाद के मामलात इस सिलसिले में मुआविन साबित हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया राजा कौसर सईदी साहब, आप उस्ताद मुअज़्ज़म हैं, मुकर्रम हैं और मेरे लिए बड़ा एक एज़ाज़ ये भी है कि मैं मुल्तान शहर में जब मैं हाज़िर हुआ तो यहाँ चूँकि कराची से मेरा ताल्लुक़ है और कराची में हम बहुत सारे बड़े चैनल्स पर हम बैठते रहे और बड़े चैनल्स से गुफ्तगू हमारी रही, लेकिन यहाँ एक बात मुझे एहसास हुआ कि यहाँ भी माशाल्लाह बड़े लोग भी हैं और बड़े चैनल्स भी हैं और उन बड़े चैनल्स में आपका ये मक्स चैनल्स भी है और इसके साथ ही जो बदलता ज़माना आपका अखबार है, मैं शुक्रिया करूँगा और मुबारकबाद भी दूँगा कि इस जनूबी पंजाब की आवाज़ को जिस अंदाज से बदलता ज़माना ने और मक्स न्यूज़ ने लोगों तक पहुंचाया है, ये बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ा काम है जिसके लिए मैं समझता हूं कि सारा क्रेडिट मोहतरम अकमल वैस साहब को जाता है और उन्होंने बड़ा खूबसूरत ये काम किया। पहली बार वेब चैनल के थ्रू आप जैसे साहिब इल्म लोग और किबला कारी साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई, तो मैं तमहीदन एक बात कह दूं कि इतनी इल्मी और रूहानी गुफ्तगू के बाद मेरा इजहार ख्याल उसूली तौर पर बनता नहीं है, क्योंकि तबर्रुक के तौर पर चूंकि प्रोग्राम का फॉर्मेट है इसलिए ज़ाहिर है थोड़ी सी गुफ्तगू मुझे भी करनी पड़ेगी। तो मैं किबला कारी साहब की इजाज़त से मुख्तसरन चंद जुमले अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो आपने इरशाद फरमाया ना कि जो जहन्नम का एक तसव्वुर है जो आखिरत के हवाले से है,
देखिए, मैं इनकी गुफ्तगू से जो मैं अखज़ कर पाया और इनकी गुफ्तगू के ज़रिए जो लफ्ज़ों के ताने बाने मेरे जहन में बुनते चले गए, उसकी रूह से मैं समझा कि एक तो वो जहन्नम है कि जो बादस मौत हमें जिसका सामना होगा, जहन्नम और जन्नत के जिस तसव्वुर का, एक जहन्नम वो कि जिसको हमने खुद तख्लीक किया इस दुनिया में। और वो जहन्नम कौन सी है कि उस जहन्नम में हमने अपने हाथों से अपने चारों तरफ आग जलाई। वो आग बददियानती की है, वो आग बदउनवानी की है, वो आग हरामखोरी की है, वो आग हमने जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना शुरू की उसकी है। अब उसकी एक मिसाल बड़ी आसान सी, बड़ी अहम बात की जी, बड़ी आसान सी एक मिसाल के ज़रिए हम इस बात को समझ लें कि रमज़ान शरीफ का ये माह मुक़द्दस जो पाकीज़गी और तहारत देने के लिए उतारा गया, लेकिन हमने सिलसिला उसमें क्या किया कि रमज़ान से पहले कीमतें और रमज़ान के दौरान कीमतें, उसका इतना वाज़ेह और बड़ा फ़र्क है कि गोया हम जन्नत से निकलकर जहन्नम में दाखिल हो गए। अब रमज़ान की बरकतें, फ़यूज़ तो सिर्फ वो लोग समेटेंगे कि जिन्होंने हकीकत में रमज़ान को समझा और अपने आमाल को रमज़ान के मुताबिक ढाल लिया। क्या अच्छी बात की आपने, वाह 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 वाह। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपने इस जहन्नम से पहले निकलना है, फिर हम उस जहन्नम से बचेंगे। रोज़े क़यामत जब हमारा हिसाब होगा तो पहले तो हमसे यकीनन फलों की कीमत ही पूछी जाएगी ना, कि देखिए वो जो 20 रुपए किलो मिलने वाला फल आपने माह सयाम में उसे 100 से ऊपर ले गए, गोया गरीब की दस्तरस से आपने उसको बाहर निकाल दिया। अब एक गरीब शख्स कैसे अपने बच्चों के पेट में वो फल डाले या वो दुनिया की ख्वाहिश है वो कैसे पूरी करेगा? दुनियावी लज्जतें और आसाइशें और बच्चों की ख्वाहिशात को वो कैसे पूरे करेगा? मुमकिन उसके लिए नहीं रहा। तो गोया हमने अपने लिए भी जहन्नम की आग जलाई और उन गरीबों के भी उस जहन्नम में धकेला जो हमने दुनिया में खुद तख्लीक की। तो खुद साख्तगी की इस जहन्नुम से निकलना मेरा ख्याल है पहली ज़रूरत हमारी है कि हम वहाँ से बाज आएँ और वहाँ से बाज आके फिर हम अल्लाह की बनाई उस जहन्नम से कि जिसकी वईद और जिसके बारे में बार बार बताया गया कि उस जहन्नम से बचना है, और उस बचने के लिए पूरा एक महीना अल्लाह ने हमारे लिए इतना खूबसूरत उतार दिया कि अगर हम चाहें तो बहुत आसानी से उस जहन्नम से बच सकते। तो गोया हम दुनिया को भी जन्नत बना सकते हैं अपने आमाल के ज़रिए। अच्छा, लेकिन कारी साहब इस गुफ्तगू को अभी इंशाल्लाह एक वक्फा हो जाता है, उसके बाद शुरू जारी रखेंगे कि शयातीन कैद कर दिए गए। अच्छा, अब तसव्वुर हो गया कि भाई वो तो हमें नहीं बहकाएंगे, लेकिन जैसे अभी राव साहब ने कहा कि सारे आमाल बद जो हैं वो एक तसलसल के साथ जारी हैं, उसमें कहीं कोई कमी बेशी नहीं आ रही। उसके लिए गुजारिश कर सकता हूँ? जी जी जी। गुजारिश ये है कि नमाज ज़ाहिरी इबादत है। ठीक है। आप जब नमाज पढ़ते हैं तो लोग आपको देखते हैं कि आप क़याम में हैं, आप रकू में हैं, ठीक हो गया, आप सजदे में हैं, बिल्कुल ठीक, और ये आपका हिलना जुलना ये लोग देखते हैं। सही हो गया। रोज़ा ये ज़ाहिरी इबादत नहीं है। वाह 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 वाह, ये दिल के तकवे वाली बात है, बातनी चीज है। लअल्लकुम तत्तकून, अल्लाह अल्लाह, लअल्लकुम तत्तकून। जब ये ज़ाहिरी इबादत नहीं है, बातनी इबादत है, तो आपको फायदा उस वक्त मिलेगा जब आप अपने बातिन को साफ करेंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, ठीक है सही। आप अपने बातिन को साफ करेंगे और ये समझेंगे कायनात का कोई इंसान मुझे देखे ना देखे, लेकिन मेरा रब्बे करीम जो है, जिसने ये इरशाद फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मेरा रब भी मुझे देख रहा है, और अन्नबियो औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, मेरा नबी भी मेरी जान रगे जान से ज्यादा करीब है, वो भी मुलाजा फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो ना मेरे अमाल मेरे आका करीम से छुपे हैं और ना मेरे रब से छुपे हैं। लिहाजा जब ये तसव्वुर पुख्ता होगा तो रोजे की सही लज्जत उसे नसीब होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ठीक है नहीं? जब रोजे की ये तकवे वाली लज्जत उसे अता हो गई, फिर वो ये नहीं करेगा कि मैं अपने बच्चों के लिए फ्रूट ये वो नहीं,
फिर वो देखेगा सहाबा कराम की मुबारक जिंदगियों को कि इसके बावजूद कि उनकी औलादें थीं, इसके बावजूद के माली तिजारत से उन्हें नफे कसीर होता था, बड़े ताजिरों में शुमार होते थे, बड़े तुजार में वो शरीक शुमार उनका होता था, लेकिन उन्होंने इस बात को तरजीह नहीं दी कि हम अपनी औलादों को फ्रूट सेब ये वो नहीं, बल्कि उन्होंने कहा हम वो काम करेंगे जिससे अल्लाह राजी हो जाए, उसका रसूल राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है जनाब, आप हराम कमा के ये सोचें कि मैं आज शाम को दिन को मैं रिश्वत लूंगा और शाम को अपने बच्चों के लिए फ्रूट लेके जाऊंगा, तो आप उनकी कोई भी खिदमत नहीं कर रहे बल्कि उनके पेट में हराम डाल रहे हैं, जहन्नम की आग डाल रहे हैं। कभी भी वो फर्मा बरदार नहीं हो सकता, बल्कि फर्मा बरदारी की बजाय वो आपका नाफरमान होगा और कल यही औलाद आपको जूते मारेगी। नाजरीन, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, इंशाल्लाह वक्फे के बाद ये गुफ्तगू इसी तरह जारी रहेगी। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। रमज़ान आ गया है, रमज़ान आ गया है, बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमज़ान आ गया है, रमज़ान आ गया है। सारी दुनिया भागे 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 बूम बूम, सारी दुनिया नचे 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 बूम बूम। मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है, कुछ नया पकाओ नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ, इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। चिप्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ, चिप्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिव्स पास्ता और गिव्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिव्स पास्ता, गिव्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले
ले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 03000 777 200 03000 222 402। खास बनाएं अपना रमजान और सहर इफ्तार में सजाएं अपने दस्तरखान। गिब्स मेयोनेज़, क्रीमी एंड स्मूथ। गिब्स मेयोनेज़, bring out the best. रमजान आ गया है, रमजान आ गया है, बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारा प्रोग्राम रमज़ान ज़ीशान और हमारा आज का मौजू जहन्नम से आज़ादी का महीना। जनाब प्रोफेसर राव जावेद इकबाल साहब, आप माशाल्लाह उस्ताद हैं, मुहक्किक हैं, अदीब, दानिश्वर, इल्मी और अदबी शख्सियत। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि नस्ल नौ को हम बतौर वालिदैन, असातिज़ा, उलमा, खुतबा की क्या ज़िम्मेदारी है कि वो इस माह मुकर्रम में क्या अमाल करें कि जहन्नुम से बच सकें? ये बड़ी अहम और बड़ी खूबसूरत बात आपने की है, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक बुनियादी सा सवाल है
कि हमें बहैसियत वालिद के, बहैसियत उस्ताद के, बहैसियत आलिम के, बहैसियत मुहक्किक के हम अपने बच्चों को किस सिमत में लेके चलें। देखिए, सबसे पहले कहते हैं कि माँ की गोद पहली तरबियत गाह है इंसान की। अब हमें वहाँ से जो दर्स मिलता है, असल बुनियाद वहाँ से खड़ी होती है, या तो इमारत बनती है या इमारत बिगड़ जाती है, ढह जाती है। अब हमारे घरों में बाज़ औक़ात बड़ी एक अजीब सी शय होती है, मैं तो अमली तौर पे चीज़ों को देखता हूँ तो मैं उसका इजहार अक्सर कर देता हूँ। कोई साहब आपसे मिलने आते हैं और आप नहीं मिलना चाहते या किसी मसरूफियत में मशगूल हैं, तो आप बच्चे को अमूमन ये कहते हैं कि बेटा जा कह दो अब्बू घर पे नहीं है। अब पहला दर्स जब आप झूठ का देंगे तो वो बच्चा जब बड़ा होगा तो ये उसकी घुट्टी में आपने झूठ डाल दिया। अब यही झूठ उसको आगे चल के फिर बहुत सारी बुराइयों की तरफ, बहुत सारे मामलात की तरफ लेके जाएगा। पहले आपने खुद उस सिम पे लेके गए। उस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है, वो बच्चा तो बल्कि पहली बार जब आप उससे बात करेंगे वो थोड़ी देर आपका चेहरा देखेगा कि अब्बू ये कह क्या रहे हैं कि मैं झूठ बोलूं जाकर। बल्कि अक्सर जगहों पर इसका इजहार होता है कि, और लतीफा भी बन जाता है कि जाके वो बच्चा कहता है कि अब्बू कह रहे हैं मैं घर पे नहीं हूँ। तो ये जो बुनियादी जिम्मेदारी है वालिद से लेकर और मकतब तक, मकतब से लेकर और माशरे तक, माशरे से मस्जिद व मिंबर तक, हम सब की जिम्मेदारी है कि रास्तगोई सिखाएं। हम उन्हें सिखाएं कि अमानत कैसे संभाली जाती है। हम उनको सिखाएं कि शर्म व हया कैसे कायम की जाती है। हम उन्हें सिखाएं कि गैरत कहाँ से जन्म लेती है। और जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी हुई तो वहीं से तो इंसान बहादुर बनता है। ये जो हमारे कुरून औला के वाक़यात हम सुनते हैं कि फ़लाँ इतने बहादुर थे, फ़लाँ इतने बहादुर थे, बहादुरों की एक बड़ी लाइन लगी है। आज वो बहादुर कहाँ चले गए? इसलिए कि हमारे अंदर से वो सिफ़ात हमने खुद ख़त्म कर दी कि जो बहादुरी और दिलेरी और एक सीना तान के चलने वाली कैफियत हमारे अंदर पैदा करती थी। सो हमें अब ज़रूरत है कि हम बच्चों को वो चीज़ें बताएं कि जो बुनियादी तौर पर किरदार की तामीर के लिए ज़रूरी है। क्या अच्छी बात की है। और ये अपने अमल से साबित करें, सिर्फ ज़बानी कलामी कहने से नहीं चलता, आप अमल से। मैं अक्सर अपने तालीमी इदारे में जब गुज़रता हूँ क्लासरूम के सामने से, तो मैंने एक बड़ा मामूली सा एक अमल अपनाया और उसके असरात मैंने बहुत दूर तक देखे। वो बच्चे अक्सर मुख्तलिफ चीज़ें खा के रैपर फेंक देते हैं। अब अगर मैं उनको रोक के टोकूं तो ये उनकी तज़लील है, तौहीन है इतने सारे बच्चों के सामने के साथ, ये रैपर उठाओ और डस्टबिन में डाल दो। इसका बहुत आसान सा तरीका था। मैं गुजरा, मैंने रैपर उठाया, डस्टबिन में डाल दिया। बच्चे खुद शर्मिंदा होते हैं और वो उस अमल से दूर होते हैं। गोया हमें अपने अमल के जरिए किरदार साजी करनी है, ना कि हम ज़बानी कलामी या बहुत फसी व बलीग तकरीर के जरिए उनको उस सिमत में लेके आए। और किबला जैसी शख्सियात मौजूद है, यकीनन इनके अमाल व किरदार हमारे लिए बड़े अहम हैं और रोशनी का एक मीनार की सूरत ये लोग हैं। हज़रत गिरामी हुज़ूर वाला मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक रब्बे करीम ने फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कायनात की बेहतरी जिस बात में है, रब्बे करीम ने उसका वाज़े ऐलान फरमा दिया। लक़द काना लकुम, लाम भी ताकीद के लिए है और कद भी ताकीद के लिए है। फरमाया जरूर जरूर, तहकीक तहकीक, काना लकुम तुम्हारे लिए, फी रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुकद्दस में उस्वतुन हसना, उस्वा हसना है। बात ही खत्म हो गई। ठीक है ना? सही बात यह है, अगर हमारी तरजीहात बदल गई, हमने क्या किया? हमने अंग्रेज की सुन्नत को, तरीके को अपना लिया, आका करीम की सुन्नत मुकद्दसा को छोड़ दिया। ठीक है? और उन लोगों ने तरक्की क्यों की? मैं मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं। उन लोगों ने तरक्की क्यों की?
انہوں نے اسلام کے سنہری اصولوں کو اپنایا، وہ ترقی کر گئے۔ ہم مسلمان ہو کر ہم نے انگریز کی تقلید شروع کی، برے کام ان کے لے کے اسلام کے سنہری اصولوں کو چھوڑ دیا۔ عبداللہ کا نام ہم پہ سج گیا، عبداللہ کا کردار وہاں چلا گیا۔ حضرت نے جو بات کی نا کہ بیٹے کو کہا کہ جاؤ بیٹا باہر کہو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، تعلیم یہ ہے بیٹا جھوٹ مت بولنا، تعلیم یہ ہے بیٹا جھوٹ مت بولنا، ہاں جھوٹ نہ بولنا۔ اور ہوا یہ کہ جب باہر کوئی بندہ آیا وہ ملنا چاہتا ہے تو اور یہ نہیں ملنا چاہتے، اب بیٹے کو کہا بیٹا جا کے کہو کہ وہ نہیں ہے۔ اب بیٹا کشمکش میں مبتلا ہو گیا، تعلیم یہ ہے، تربیت یہ ہے۔ کیا اچھی بات کی آپ نے، واہ 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 واہ، تعلیم یہ ہے، تعلیم یہ تھی، تربیت وہ ہے۔ اب بچہ کیا کرے، تعلیم پر عمل کرے یا تربیت پر عمل کرے؟ جب والدین کی تعلیم و تربیت میں تفاوت ہوگا حضور والا، پھر معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، جب میں ان کا کردار صحیح ہوتا تھا تو بیٹا غوث الثقلین پیدا ہوتا تھا۔ جب بیٹا نمازی پرہیزگار متقی ہوتا تھا تو بیٹا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر پیدا ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے صحیح؟ یہ اولیاء کی پیدائش کیوں ہوتی تھی کہ اصل تربیت گاہ ماں کی اولاد ہے۔ پروفیسر صاحب نے فرمایا اولین سیڑھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، سی وہ ایک بزرگ کے متعلق ہے نا جی کہ ان کو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی غالباً ان کو اپنے استاد محترم کی بارگاہ میں لایا گیا، ان کے حضور آپ قرآن شریف ان کو پڑھائیں۔ استاد محترم نے اپنا بیٹا پڑھو الف، کہ استاد محترم ایک منٹ ٹھہر جائیے، ایک منٹ ٹھہر جائیے، پہلے مجھ سے سن لیں، میں صحیح پڑھتا ہوں۔ 15 سپارے سنا دیے۔ 15 سپارے سنانے کے بعد تو استاد محترم نے فرمایا بیٹا پڑھنے آئے ہو پڑھانے آئے ہو؟ کیا بات، ارشاد فرمایا استاد محترم جو پڑھ کے آیا ہوں وہ سنانے آیا ہوں، آگے پڑھنے آیا ہوں۔ واہ واہ کیا بات، یہ ماں کی تربیت کا نتیجہ یہ ہے۔ انہوں نے کہا میں نے یہ 15 سپارے اپنی ماں کے پیٹ میں پڑھے ہیں۔ اب جہاں پر ماں اتنی پاکیزہ ہو، اتنی پاکیزہ ہو کہ بچہ ماں کے پیٹ میں بھی قرآن یاد کر لے تو اس گود اور اس پیٹ کے کیا کہنے۔ ٹھیک ہے نا حضور؟ تو یہ باتیں جو ہے نا یقیناً ایسی ہیں۔ قبلہ یہی تو ہے نا، دیکھیے یہود و نصارہ نے جو ہمارے لیے جال بنا ہے کہ وہاں وہ حفظ قرآن ہوتا ہے ماں کی پیٹ میں، اور یہاں جب ماں صبح بیدار ہوتی ہے تو پہلے ایک میسج بھیجتی ہے اس موبائل کے تھرو، تو جب اس کے تھرو جب میسیجز اور یہ موبائل استعمال ہوگا تو بچہ کہاں سے حافظ پیدا ہوگا اور کہاں سے اس کی تربیت ہوگی۔ واہ واہ، ہماری جماعت کے بہت بڑے خطیب ہیں مفتی عبدالحمید چشتی صاحب جی، وہ خطاب فرما رہے تھے، دوران خطاب ایک بندے نے سوال کر دیا کہ حضور جب میں سوتا ہوں نا تو مجھے خواب میں باندر اور خنزیر نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں یہ بتاؤ کہ سوتے کیسے ہو؟ کہنے لگے جی وہ میں ٹی وی پر وہ یہ چیزیں دیکھتے رہتا ہوں، دیکھتے دیکھتے سو جاتا ہوں۔ فرمایا جب تم اس قسم کی چیزیں ٹی وی پر دیکھ کے سو جاؤ گے پھر تمہیں نبی کی زیارت ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو پھر تمہارا حال بھی یہی ہوگا۔ درود شریف پڑھتے ہوئے سوتے ہیں، واہ واہ، آیات پڑھتے ہوئے سوتے ہیں۔ وہ ایک باپ نے کہا اپنے بیٹے کو تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم وہ ابھی 2 بجے رات کی آ رہے ہو، 3 بجے آ رہے ہو، یہ کیا؟ انہوں نے کہا بابا جی پچھلی رات آپ بھی تو 4 بجے آئے تھے، اور جب جہاں وہ بلیو پرنٹ چل رہا تھا میں نے دیکھا آگے آپ بیٹھے تھے پیچھے میں بیٹھا تھا۔ حضور جب سرپرست کا یہ عالم ہوگا کلکم رائن کلکم مسئول عن رعیتہم، فرمایا تم میں سے ہر ایک جواب دہ ہے، اس سے سوال ہوگا۔ اللہ اللہ، تم نے اپنی رعایا کے ساتھ کیا کیا؟ باپ سے سوال ہوگا بیٹے کی تربیت کس طرح کی ہے، بیٹے سے پوچھا جائے گا تم نے باپ کی فرمانبرداری کی ہے کہ نہیں کی، استاد سے پوچھا جائے گا تم نے اپنے شاگرد کی تربیت کس طرح کی ہے۔
ठीक है ना सही। शागिर्द से पूछा जाएगा तुमने उस्ताद की किस तरह कदर मंजिल रखी है कि नहीं रखी। शाम को एक रेवड़ जब वापस आता है, जिसके जानवर होते हैं वो पूछता है मेरी बकरी, मेरी गाय, मेरी भैंस, वो ये कहाँ है? पूछते हैं। हमने तो पूछा ही नहीं, बीवी से नहीं पूछा कहाँ जा रही है क्या और किस तरह जा रही है। हम तो मुसलमान हैं, तुम्हें तो पर्दे में जाना चाहिए था, तू पर्दे में नहीं जा रही बल्कि तू तो नंगे सर जा रही है। अल्लाह, तेरा बदन सारा नंगा नजर आ रहा है। तू लोगों के लिए थोड़ी बनी है, तू तो मेरे लिए बनी थी। आज तेरा हाल ये है, जब हम नहीं पूछेंगे घी के घड़े बन जाएंगे जी। क्या बात, तो हुजूर वाला फिर औलादे तो हमारी वो नस्ल तो बर्बाद हो जाएगी। वाह वाह वाह, इसके हलाल हम नहीं खाएंगे। हमारी तरजीह ये है कि हम करोड़पति बन जाएं। मेरे आका करीम ने ये नहीं फरमाया कि तुम अपने दिल में ये हसरत लेके फिरो कि मैं करोड़पति बन जाऊं। नहीं, ये हसरत लेके फिरो कि अल्लाह राजी हो जाए और उसका रसूल राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर हम क्या देखें? फरमाया अपने से बड़े को मत देखो, वाह वाह वाह, अपने से छोटे को देखो। तुम ये तो देखो तुम्हारे ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैसा इनाम अता फरमा दिया है। मुझे एक बुजुर्ग की बात याद आई और मैं बात खत्म करना चाहता हूँ। एक बुजुर्ग किसी जगह पर तशरीफ फरमा थे और उनके बाजू नहीं, दोनों बाजू नहीं, दोनों टांगे नहीं, लेकिन उनकी कैफियत यह है कि वो लोगों को कुरान सिखाते हैं और हदीस सिखाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनका एक ही बेटा था, वो उनकी खिदमत किया करता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि लोग आए पढ़ने पढ़ाने के लिए, तो उन्होंने फरमाया बेटा, मेरा एक ही बेटा है, वो 2 दिन से कहीं गया है और वापस नहीं आया। तो बाबा जी हम तलाश करते हैं। ये बड़ी तवील कहानी है और मैं मुख्तसर करता हूं। वो तलाश किया, देखा वो बच्चा जो है वो पहाड़ के तोदे में, मिट्टी के तोदे में वो फंसा हुआ है और मरा खड़ा है। अल्लाह अल्लाह। आके बाबा जी को बताया कि हुजूर इस तरह है। उन्होंने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रजा पे राजी, अल्लाह की रजा पर राजी। कफन दफन हो गया। कुछ दिनों के बाद बाबा जी का विसाल हो गया। तो आस पास की बस्ती वाले लोग धाड़े मरते हुए, रोते हुए उस बाबा जी की मैयत पर आके नुहा कुना हुए। तो लोगों ने पूछा कि ये तो बाबा तो माजूर था, शुक्र करो ये मर गया है। उसने कहा नहीं। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये उन लोगों में से है जिनके मुतालिक हमारे आका ने फरमाया वबिहिम तुरज़क़ून वबिहिम तुमतरून, अल्लाह, कि इन्हीं के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाता है, इन्हीं के जरिए से अल्लाह तुम्हें बारिश अता फरमाता है। ये उन लोगों में से थे। अल्लाह, इनकी बरकत का तो तुम्हें पता ही नहीं है, हम इस वजह से रो रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हुजूर, बात आदमी माजूर भी हो ना, तब भी अगर उसके पीछे अल्लाह की रजा हो तो खुदा की कसम फिर सारी बातें जो है, सारी बातें जो है वो फिर वो जुड़ जाती है उसी करीम की तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रासा प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हात हैं और मक्स न्यूज़ के नाज़रीन के लिए कोई बहुत ही ख़ास और जामे किस्म का पैगाम। जनाब बहुत शुक्रिया, मैं मक्स न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इज़्ज़त अफजाई की। हमें ऐसे चैनल्स की और ऐसे अखबारात की हौसला अफजाई करनी चाहिए और पजीराई करनी चाहिए, इसलिए कि हकीकत में ये किरदार साजी का काम भी कर रहे हैं और मुआशरे को उसका आईना भी दिखा रहे हैं। तो जब ये सूरत हो तो मेरा ख्याल है उनका हमें साथ देना चाहिए। हमारे मोहतरम अकमल भाई साहब जितना काम कर रहे हैं और जो शब रोज़ मेरी जो निगाह देखती है, जिस अंदाज से, जितनी मेहनत से वो हर वक्त अपने आप को गोया उन्होंने वक्फ कर दिया इस मिशन के लिए। और ये मिशन महज कमाने का मिशन नहीं है कि सब टीवी चैनल्स के थ्रू या अखबार के थ्रू वो कोई पैसा इकट्ठा कर रहे हों, बल्कि ये मुआशरे को सुधारने का एक ऐसा बेड़ा उन्होंने उठा लिया है कि जो उनकी दीन और दुनिया दोनों को सुधारने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुज़ूर आपसे भी गुजारिश है कि हमारे मक्स न्यूज़ के नाज़रीन आपको देख रहे हैं, इसमें तमाम उम्र के लोग मौजूद हैं, तो ज़रा कोई ख़ास किस्म का एक पैगाम आज के इस मौजू के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी इस फ़कीर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर गज़ाली ज़मान के सदक़े से
کچھ عطا فرمایا ہے اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میں برادر طریقت جناب ملک محمد اکمل بینس صاحب اور برادر طریقت جناب محترم کوثر سعیدی صاحب جن محبتوں کو لے کر خلق خدا کی خدمت کے لیے اور بہتری کے لیے جو کام کر رہے ہیں، یقیناً یہ قابل داد و تحسین ہے۔ اللہ رب العزت اس مخصنیوز اور بدلتا زمانہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور سامعین و ناظرین کے لیے جو ایسے پروگرام بڑی محبت سے سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ فیض قیامت تک جاری و ساری رکھے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ جناب پروفیسر راؤ جاوید اقبال صاحب، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ممتاز عالم دین حضرت قاری محمد عمر سعیدی صاحب، ماشاءاللہ آپ نے روح کو تازہ کر دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ آپ کو سلامت۔ تو ناظرین، پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ ایک شعر میں آپ کی اور سامنے کی نظر کروں کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلالو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلالو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ کیا بات۔ تو ناظرین، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies.